Welcome to Language Logic, my dear learner. I'm Rahul Rajani, and today we're going to discuss part 3 question answer. And the topic is, you can see behind my back. Describe someone, a famous person that is a role model for young people. Alright, so stick with me because I'm going to give you precise use of idiom, collocation, and phrasal verb that will help you to get your desired band score. That might be 7, 8, or even 9. Right? So let's dive in. Alright, so हमारा first question है, what kind of people are likely to be the role models for teenagers? Answer is, teenagers are likely to look up to a variety of role models who influence different aspects of their lives. Parents and family members are the first one, I believe, as they spend major time with them. Apart from it, teachers and coaches come second for having interaction at school or institute. Afterwards, peers, celebs, historical figures exhibit qualities which are likely to make them follow. ये जो highlighted word है ना, apart from it, having interaction, historical figures, exhibit qualities, please use it in your speaking and writing because these are the advanced words that will help you to get the score. Got it? Okay, so next question we're going to see is it important for children to have a role model? Looking up to someone makes kids inspired to go for the dream and achieve it. When they feel like they're not going to make it or they're struggling, that time they need someone whom they can think about for motivation or to finish the task. Personally speaking, I did the same when I was a kid. I would think about Messi and then I'm all charged. देखो ये क्वेश्चन कौन सा है कि बच्चों को रोल मॉडल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया, फिर बाद में क्या दे दिया है, पर्सनल एक्सपीरियंस. अगर आपके पास नॉलेज नहीं है क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, ठीक है, तब आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दो बिकॉज इट इज कंसिडर्ड इन द आंसर एंड विल हेल्प यू टू मेंटेन योर फ्लुएंसी एंड द कंटेंट. ठीक है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस देने के लिए क्या कर दिया यूज, पर्सनली स्पीकिंग. और ये दो फ्रेज के एक्सप्लेन कर देता हूँ. फील लाइक, यानी कि जब भी कोई चीज आप अंदर से ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तब ये फ्रेज यूज होता है. आई फील लाइक आई डू दिस, आई फील लाइक आई शुड डू दिस. ठीक है, और ये है गोइंग टू मेक इट, यानी कि जो भी टास्क आपको असाइन किया या फिर आप काम करने वाले हो वो आपसे पॉसिबल हो पाएगा, तब आप ये यूज कर सकते हो आई एम गोइंग टू मेक इट. अगर नहीं है तो फिर आपको क्या यूज कर देना है, आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट. ठीक है, और आई एम ऑल चार्ज ये एक्चुअली देखा जाए तो फ्रेज ही है जो इडियम के सेंस में आप इसको समझ सकते हो. ठीक है, आई होप यू हैव गॉट दिस. सो वी आर मूविंग टू अवर थर्ड क्वेश्चन एंड दैट इज, are there any differences between today's famous people and those of past? It's a whole new ball game today. Noted people were often recognized through traditional media like newspaper, radio, and television, whereas now social media platforms like Instagram, TikTok, and YouTube have created avenues for fame. Another distinction is past public figure had a sense of privacy, which now is a major concern with celebs. Back then, people had limited access to interact with the famous ones, and that is vice versa now. अब इस आंसर में मैंने 3 सिचुएशन मेंशन करी है. ये क्वेश्चन एक्चुअली में देखा जाए तो डिफरेंस मेंशन करने को बोला है कि डिफरेंस क्या है, राइट? तो जब भी कोई डिफरेंस के बारे में बात है, पास्ट और प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट और फ्यूचर, तब आप उसका आंसर ये फ्रेज बोल के स्टार्ट कर सकते हो. इट्स अ होल न्यू बॉल गेम टुडे, कि पहले से अभी की जो गेम है वो पूरी की पूरी अलग है. ठीक है, ये फ्रेज है, डिफरेंस आए तभी आपको ये यूज करना है. फिर नॉटेड तो आपको पता है ट्रेडिशनल मीडिया भी, और अनदर डिस्टिंक्शन यानी कि अनदर डिफरेंशिएशन कि जो दोनों को अलग करता है वो डिस्टिंक्शन. एंड देन मैंने क्या यूज किया है, बैक देन. पास्ट के बारे में अगर आपको बात कर दिया ना कि इन द पास्ट, एट दैट टाइम, नहीं, वो फ्रेजेस नहीं, उसके जगह पर आपको क्या यूज करना है,
back then, ये पास्ट के बारे में ही बात करता है। और लास्ट वाला वाइस वर्सा आपको शायद पता होगा, नहीं है तो बोल देता हूँ कि वाइस वर्सा का मतलब कि सिचुएशन का टोटली ऑपोजिट होना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर आइसक्रीम पसंद है तो मेरे भाई को कुछ और ही पसंद है, मतलब टोटली डिफरेंट है। ठीक है, मूव ऑन करें। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट क्वालिटीज डू फेमस पीपल हैव? न्यूमरस एट्रीब्यूट्स renowned people acquire. Consistency being one of them makes them straight ahead of the rest, and they are loved for having down to earth nature. Never give up attitude, positive mindsets, and ability to go the extra mile are such points found in this kind. So इस आंसर में मैंने 3 इडियम यूज किया है। आपको एक्चुअली में नहीं करना है, मुझे आपको दिखाना था इसीलिए यूज किया है। आपको 2 से 3 मैक्सिमम पूरे के पूरे स्पीकिंग में यूज करना है, पूरे सवाल में, यानी कि एक सवाल में 3-4 यूज नहीं करना है। ठीक है, स्ट्रीट अहेड ऑफ द रेस्ट यानी कि द बेस्ट है, उसके लिए ये फ्रेज यूज होता है, स्ट्रीट अहेड ऑफ द रेस्ट। देन डाउन टू अर्थ पर्सन यानी कि डाउन टू अर्थ नेचर, उसका मतलब क्या है कि जो उसका बिहेवियर है वो कैसा है, बहुत ही सिंपल वाला है। ठीक है, और गो द एक्स्ट्रा माइल यानी कि जो भी हमारी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से भी आगे जाना, तब ये यूज होता है गो द एक्स्ट्रा माइल। गॉट इट? ओके, सो आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर लाइकली टू बिकम फेमस? आजकल कैसे लोग फेमस बनते हैं? As previously pointed out, that those who want to achieve their targets at any cost can be the one. Besides, having the thought process similar to famous ones increases the likelihood. Other than this, willpower, determination, and ability to accept the mistakes and learn from it are necessary. अब इस आंसर में मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? एज प्रीवियसली पॉइंट आउट। अगले आंसर में भी मेरा आंसर कैसा था? सेम ही था, राइट? तो मुझे रिपीट नहीं करना था, तो कैसे यूज कर दिया मैंने? एज प्रीवियसली पॉइंटेड आउट, फिर बाद में दूसरे पॉइंट्स दिए, सेम पॉइंट्स नहीं बोले मैंने। कि जब भी 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको सेम लगे, पहले में आपने दे दिया, दूसरे में नहीं दिया, तो ऐसे आपको मेंशन करके दूसरे आंसर देने हैं, सेम रिपीटेशन नहीं करना है। ठीक है, फिर है लाइकलीहुड। ये मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि लाइकलीहुड यानी कि चांसेस, कि कोई काम होने के चांसेस कितने हैं। जैसे हम यूज करते हैं ना मे और माइट, कुड भी यूज करते हैं, बस वैसे ही सेंस में लाइकलीहुड यूज होता है। फिर है अदर देन दिस, एंड है ना, एंड उसका अल्टरनेटिव है अदर देन दिस, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन से। एंड देन थॉट प्रोसेस यानी कि जो हमारी सोचने की जो प्रोसेस है वो कैसी है। ठीक है, देन है सिक्स्थ, Do people tend to choose the best people as their role model? Obviously, हर कोई को बेस्ट ही चाहिए ना अपना रोल मॉडल, ताकि हम उनसे कुछ सीख पाए। तो आंसर भी वैसा है कि when they can get the optimal things, why would they want to look up to the average? They know that even a small thing taken from them can get or lead to the position they want. All I'm saying is, this is the case and that is the motive of following a top order person. मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि हाँ बेस्ट से कुछ मिल सकते हैं तो एवरेज को क्यों फॉलो करना चाहिए। मैंने एक्चुअली पे यहाँ पर क्वेश्चन यूज किया, लेकिन आपको नहीं करना है, एग्जामिनर को क्वेश्चन नहीं करना है कि बेस्ट से मिल रहा है तो फिर एवरेज को हम क्यों फॉलो करें। नहीं भाई, हमको उसको आंसर देना है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, फिर है ऑप्टिमल थिंग्स यानी कि बेस्ट थिंग्स। ऑल आई एम सेइंग, अब यहाँ पर क्या किया है कि ये जो पॉइंट है ना उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये फ्रेज यूज किया है कि जब भी आपको लगे कि हाँ भी मैंने ऊपर जो बोला है वो एग्जामिनर शायद समझ नहीं पा रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा पॉइंट क्लैरिफाई। तो अगर आपको पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है अपना, तब आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो, ऑल आई एम सेइंग इज। ठीक है, सो सिक्स्थ है और सेवंथ। ओके, आ गए हम घर पे। So that is for today. If you really enjoyed this video and if you think it will be beneficial to you for your speaking test, then please give it a thumbs up, hit the subscribe button and the bell icon as well. So when I post any videos, that I will do so frequently, so you can get updates, right? So if you have any questions at least, so comment me down in the below. I will reach out to you and solve it together, right?
So until we meet again in the next video, bye bye.